Okay, so I made some notes over here related to Docker. We'll see one by one. Okay, we'll see the practical also, and we'll see क्या Docker है, क्यों है, किस लिए, all the everything also. So first, tell me, do you have any idea about what is Docker? मतलब definitely you heard about it also. कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, right? But राइट सो बेसिकली डॉकर एक तरीके का कंटेनर है जिसमें ऐसे सर्वर पे अलग अलग सर्वर्स हैं, अलग अलग सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, राइट. right, अगर कोई एप्लीकेशन हमें डिप्लॉय करनी है तो वो कॉन्फ़िगरेशंस हर एक सर्वर पे जाके मैन्युअली करनी पड़ेगी. अगर हम डॉकर के थ्रू करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर बना के जो जो उसकी डिपेंडेंसीज हैं वो सारे उस कंटेनर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं. सो हमें सिर्फ डॉकर मतलब डॉकर कंटेनर डिप्लॉय करना है आई गेस सर्वर पे, कुछ इस तरीके से काम करता है. right. डिपेंडेंसी उस कंटेनर के अंदर होती है, हमें मैन्युअली वो अलग अलग सर्वर पे जाके Right. हाँ, नहीं resolve- तुमने you just said it right only. So Docker is a container. As a containers की तरह काम करता है. ये open source है फिलहाल तो. And Docker एक product है, मतलब that we can install it. Okay, extensions भी आता है Visual Studio के साथ. Once we install the Docker, automatically IntelliJ ये सब they will ask the extensions. Okay. So Docker is the most popular, you can say, open source container platform, and it allow to developer to create the container for the application, for the like desktop they want something. So you can say like I want to install, I need to do something on the Linux, right, or Unix. So what I need to do, I need to set up a system and do something, right, or over there also I want to install something. So rather than doing it exactly separately on separate machine, the Docker is saying that yeah, I'll provide you virtualizations. Means the same as operating system, I'll do the behave the same way. There you can install exactly, or I'll behave like as a machine. There you can install the different operating system or different system configuration you can do. Okay, so that whatever the things we will install or whatever the things we will do, that is we call container. So everything is container. वो containerize करता है, ठीक है. अब what the Docker is like as a container, ठीक है, behave like as a container. So whatever we are pushing or placing, then everything goes to the as a part of container. Okay, what problem can be solved by Docker? So see, Docker, as we know, actually, as I just told you, just starting my system is taking so much heavy, right? It's taking so much processing, like Java installed. For Java itself, you can take an example. What we need to install, we need to definitely have one operating system. Then we should have JDK. Then we should have one editor also. There we will actually do. Then inside the editor we should have like Spring Boot and such a thing also. And we need to install one database also, right? So database, just like JDK, like one of the software, you can take an example, IntelliJ. So what is this? These are basically taking the memory of my system, right? Or it will we will use it, and उसके अकॉर्डिंग मुझे सिस्टम को पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राइट. बट पॉइंट इज, अगर तुम कहोगे if somebody else also want the same configuration, so what I will do, तो मैं उसके सिस्टम पे जाके पहले जाऊँ और उसके सिस्टम पे जाके सब कुछ कॉन्फ़िगर करूँ. दैट इज़ नॉट वेरी इजी टास्क, राइट. क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी बड़े लेवल पे हो जाती है, जैसे कुछ बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, कॉपी पेस्ट एंड डू कॉन्फ़िगर. अभी जावा में देखो, एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ सेट करना है, फिर जेडीके करना है, इंटेलजे को कॉन्फ़िगर करना है, माइट भी कुछ प्लगइन एक्सटेंशन डालनी पड़े जो एक्चुअली यूजफुल हो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑल्सो, राइट. तो रेदर देन एक्चुअली पुटिंग सो मेनी थिंग्स और फिर हर सिस्टम पे जाके सेटअप कराने के बजाय, विल डू वन इमेज, राइट, और उस इमेज को जाके वी कैन यूर रन इट. तो याद है अर्लियर डेज में क्या होता था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द CD या फिर पेन ड्राइव के थ्रू डालते थे, विंडोज जब इंस्टॉलेशन करते थे, तो विंडोज में इटसेल्फ वी हैव सो मेनी प्रोग्राम्स लाइक MS ऑफिस और जितने भी हो गया, कोई ऑडियो वीडियो प्लेयर, वो सब कुछ उसके अंदर डाल देते थे, और उस इमेज को बोलते थे घोस्ट, ठीक है. दैट इज ऑल्सो एट द टाइम इमेज ही बोलते थे और घोस्ट बोलते थे, राइट. तो उसको क्या करते थे, जब भी जिस सिस्टम पे रन करोगे, देन ऑटोमेटिकली विल बिकम एवरीथिंग ओवर देयर. सो सेम ओवर हियर, डॉकर क्या है, एक कंटेनर है दैट ट्रैवल बिटवीन द डॉकर एनवायरनमेंट. डॉकर एनवायरनमेंट में ट्रैवल करता है विद द सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम OS रन without changing the, since Docker image contain all the dependency need to execute within the container. So Docker के पास क्या होता है, images होती है जिसके अंदर
जो भी सॉफ्टवेयर की इमेजेस होती है, वट एवर द थिंग्स वी रिक्वायर्ड इट, उसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी होती है वो किस में रन होती है, कंटेनर में रन हो जाती है, ठीक है। और हमारे लिए एक्चुअली क्या है, इतना सारा कॉन्फ़िगर ना करके हम कंटेनर को ही कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी वट एवर द बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑल्सो दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग कि आप एक्चुअली कंटेनराइज करो और कंटेनराइज करके डिप्लॉय करो। यू डोंट नीड टू बी डू, आपको हर चीज़ मैनुअली कुछ नहीं करनी, ठीक है। और एग्जांपल जैसे देखो, अगर सपोज प्रोडक्शन पे डेफिनेटली बहुत हैवी मशीन्स होती है, राइट। अब प्रोडक्शन पे जितनी हैवी मशीन होती है उसको मुझे टेस्ट करना है लोकल पे, वी गॉट सम बग ऑन द प्रोडक्शंस, तो आई वांट टू टेस्ट ओवर देयर लोकली, उसका सेम एनवायरनमेंट। तो क्या प्रोडक्शन पे जो हमने डिप्लॉय किया था वो एक्चुअली डॉकर इमेज थी। अभी भी मैं क्या करूँ, डॉकर इमेज को जाके नीचे अपने किसी एनवायरनमेंट में जाके उसको यूज करके आई कैन जस्ट सेम एनवायरनमेंट को रन करके वी कैन फिगर आउट इट व्हाट द बग और व्हाट द थिंग्स वी हैव, राइट। तो वो सब चीज एक्चुअली हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर वी रोट डाउन Docker, what can be solid. You guys can just read the theories. So it is similar to what I explained to you. Okay. So our job here is to build application which million of the people are going to use, and then they can use it from anywhere. And nowadays we make sure that you are building the web application which are deployed on the cloud so that other can use it. Right? Nowadays we want everything should be goes to cloud. Right? Now first of all you write the code, then you make sure that connect to the database, and then you test your project. You do a lot of the configuration, then you are done. Right now, everything what you are doing now, you are doing on your machine that is working fine. At the point, let's say if you are working with your team, of course, you have to give to the project to your team. Now that may go wrong, these things when you give to the project to your team, they need to do all the things. Means उनको भी configure करना पड़ेगा. They need to set up their system and everything also, right? तो उनको भी configure करना पड़ेगा. So now when they giving to project to a colleague or maybe the testing, they will all to have to set up and everything. तो इन सेटअप और इन सब चीज़ों के बचने के लिए हम एग्जैक्टली कंटेनराइज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बेनिफिट होता है, जैसे सपोज आई नीड टू इंस्टॉल समथिंग, मुझे वन टाइम एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, वन टाइम ओनली, तो आई विल यूज इट एंड एक्चुअली जब मैं अपना काम करना है तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। या सपोज मुझे एक्चुअली ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली पायरेटेड या समथिंग, या कुछ भी समझो दैट इज नॉट, मतलब कि इट शुड नॉट बी इन माई नेटवर्क, मतलब मेरी कंपनी के नेटवर्क में नहीं होना चाहिए, तो मैं डॉकराइज करके एंड आई विल जस्ट यूज इट एंड एक्चुअली फिनिश इट, तो मैं वहीं से अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो डॉकर की इमेज में क्या होगा, पूरे का पूरा सब कुछ होगा जो मुझे इंस्टॉल करना है, आई विल अनइंस्टॉल इट एवरीथिंग। तो मुझे अपने सिस्टम पे करके प्रॉब्लम क्या आएगी, मुझे सारा कॉन्फ़िगर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, सबसे जाके रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज नॉट इजी टास्क, राइट। तो सच ए थिंग, तो डॉकर हमें क्या देता है, एक तो प्राइवेसी देता है, यू कैन इंस्टॉल इट, सेपरेट चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हो आप, उनको एक सेपरेट दे विल गेट इट, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मिल जाता है आपको, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एवरीथिंग इन योर सिस्टम ओनली, तो आप यू कैन डू एग्जैक्टली सेपरेटली ऑल्सो, तो थोड़ी प्राइवेसी सी मिल जाती है, राइट। सो ओके, बिफोर द डॉकर ऑल्सो वी हैव वन कंसेप्ट, राइट, दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशंस। हाँ, वर्चुअलाइजेशंस क्या था, वर्चुअलाइजेशंस पहले ओरेकल्स वर्चुअलाइजेशंस बहुत सारे थे और हाइपर वर्चुअलाइजेशंस बहुत सारे थे। वर्चुअलाइजेशन क्या कहता था कि जैसे हमारे पास क्या है, वी हैव हार्डवेयर, लैपटॉप या डेस्कटॉप है, राइट। अब वर्चुअलाइजेशन क्या कहता है कि आपके जो हार्डवेयर और डेस्कटॉप है इसके ऊपर फिजिकली ना बना के मैं वर्चुअली एग्जैक्टली पूरा एक लेयर, पूरा एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, एवरीथिंग आई गिव यू। तो मैं सपोज आई एम मेकिंग द वर्चुअल एक मशीन बना रहे हैं, वी आर मेकिंग द वर्चुअल मशीन्स एंड ओवर हियर यू विल गेट इट एवरीथिंग, आपको स्टोरेज मिलेगी, रैम मिलेगी, एलोकेटेड, यू नीड टू डू एवरीथिंग, आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, यू एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। दैट इज यू कैन पूरा जैसे ये है इज डिट्टो एवरीथिंग यू विल गेट इट, आपको सब कुछ मिलेगा। तो दैट वाज एक्चुअली इवन अर्लियर आल्सो वी हैड इट, मतलब 10 ईयर बैक एक्जैक्टली वी हैड इट, एंड लेटर ऑन आई थिंक 10 या 12 ईयर बैक एक्चुअली द डॉकर केम, बट उससे पहले ही सब कुछ था। अब क्या हुआ, डॉकर केम, द कंटेनर, द फंक्शनलिटी केम। इसके अंदर क्या बोलते हैं, यहाँ पे पहले हाइपरवाइजर करके था, हाइपरवाइजर तो वर्चुअल मशीन के लिए यूज करते थे, सेम चीज़ है, बट यहाँ पे क्या है, वी डज नॉट हैव, हमारे पास एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वी कैन इंस्टॉल द एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक गेस्ट ओएस बनाने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू इंस्टॉल द सेपरेट ओएस, एग्जैक्टली। Here everything is we will get the container engine. Container engine will be provide us all the app stores. जो भी हमें इंस्टॉल करनी है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा और हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। सो वर्चुअलाइजेशन क्या है, हमारे पास क्या करते हैं, फिजिकल मशीन्स को
उसको मल्टीपल ओएस डाल के एंड वी विल गिव इट, हमें एक्चुअली लगता है अब वो बना देता है, मल्टीपल मशीन्स बना देता है। कंटेनराइज क्या करते हैं, द एप्लीकेशन डेवलप इन होस्ट एनवायरनमेंट, जो भी हम जिसमें बना रहे हैं, जिसमें डॉकर इंस्टॉल्ड है, वो द सेम ओएस सेम मशीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है, सेम, बट उसमें क्या करते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट बना देता है, ठीक है। अगर हमें चाहिए, जैसे सपोज आई वांट टू इंस्टॉल समथिंग फॉर सम डेटाबेस, तो आई कैन गेट द डेटाबेस आल्सो ओवर देयर, ठीक है। पोस्टग्रेस या समथिंग, पोस्टग्रेस मैंने यूज नहीं किया था व्हेन आई बिल्ड इट इन जावा, हमने जावा के प्रोग्राम किए थे तो हमने SQL सर्वर यूज किया था, तो पोस्टग्रेस नहीं था, तो पोस्टग्रेस के लिए मुझे डालना पड़ेगा, उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। और व्हाई आई नीड टू बी द टू डेटाबेस इन माय सिस्टम, राइट। तो रेदर देन डूइंग द टू डेटाबेस, तो मैं क्या करूँगा, डॉकर पे यूज करके वो उसमें कॉन्फ़िगर कर लेंगे, है ना। तो दैट इज ऑल्सो वी कैन डू। अच्छा, स्टार्टअप टाइम जब वर्चुअलाइजेशन को बनाते थे, स्टार्ट करते थे, क्लिक करके प्रोसेसिंग लेता था, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता था, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। डॉकर इज वेरी फास्ट, डॉकर इज वेरी वेरी लेस टाइम, ठीक है। कंटेनर क्या होते हैं, वेरी फास्ट भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, बट यहाँ पे वेरी फास्ट भी होते हैं। कंटेनर का साइज भी बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज भी होता है, और डेफिनेटली कॉस्ट भी हमारे पास क्या लोअर आएगी, क्योंकि वहाँ क्या है, वर्चुअल मशीन्स बन रही है। वर्चुअल मशीन पर अगर जैसे MS ऑफिस या कोई और सॉफ्टवेयर डालोगे, दैट लाइसेंस कॉस्ट विल बी कम। ओवर हियर द कॉस्ट सच ए काइंड ऑफ थिंग इज वॉन्ट कम ओवर हियर, बिकॉज हमारे पास वी डज नॉट हैव सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं है कि सेपरेट एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, पूरा यूजर क्रिएशंस होगा, एक विद दैट थिंग वी डज नॉट हैव। तो डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर को यूज करना है, वी विल व्हाटएवर द सॉफ्टवेयर जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो उसके जो भी नॉर्म्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, बट एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं करना पड़ता। अभी क्या होता है कि अगर सपोज एक सिस्टम पे मैंने 10 यूजर बना दिए और 10 यूजर में 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए, 10 MS ऑफिस डाल दिए, उन सबकी लाइसेंस कॉस्ट अलग लगेगी, ठीक है। लेकिन डॉकर में ऐसा नहीं है। डॉकर में एक्चुअली सेइंग दैट कि आप तो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे you are running actually as a container, right? So you don't need to be gated, you don't need to pay anything actually extra, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर डॉकर एक्चुअली वी कैन यूज फॉर डेवलपर परपस आल्सो। आप डेवलपर के लिए यूज करो, बिजनेस के लिए यूज करो, एनीथिंग वी कैन यूज इट। सो डॉकर मतलब यू कैन बिल्ड, यू कैन शिप, आप उसको शिप कर सकते हो, आप रन कर सकते हो कहीं भी एप्लीकेशन, मतलब इमेज आपको यू नीड टू सेंड इट, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, एनी एप्लीकेशन, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप उस पर डाल कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपको अच्छा लगता है। आप एनीवेयर यू कैन यूज, फिजिकल यूज करो, वर्चुअल यूज करो, क्लाउड यूज करो, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज इट। So Docker is giving a good solution, there we can use it all these things, and can एक containerization engine मिलता है जिसके थ्रू हम एक्चुअली एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। तो what we need to do first, we should go Docker and we need to download a Docker on our local system. So first we can, I think for download we can say Docker Desktop, yeah. So Docker Desktop you can download on your system. First it should be download, okay. Right. Second, this is giving Docker Hub. Docker Hub is look like a way ki it's cloud platform, okay. There we need to find out some image like as a Google Play Store, look like a way. और लाइक मैविन का था ना, मैविन रिपोजिटरी है ना, तो वैसा कुछ है। तो ये हब है जिसपे एक्चुअली जाके आप एक्चुअली कुछ भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू विल गो देयर यू कैन सर्च एनी इमेज व्हाटएवर यू वांट टू डाउनलोड। ये अवेलेबल है सारी, हाँ ये सारी इमेज अवेलेबल है, दीज आर द इमेजेस अवेलेबल दैट वी कैन डाउनलोड एंड वी कैन यूज इट, ओके। So that we can use it from there.